हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एमएस ऑफिस के एमएस एक्सेल के बारे में सीखेंगे। एक्सेल क्या है? एक्सेल स्टार्ट्स विथ अ वर्कबुक. In one workbook, there may be one or more than one worksheet. To create a workbook, we press shortcut key Ctrl N. Since workbook contains a worksheet, then a worksheet is an electronic sheet which is divided into rows and columns. Rows are represented by integers numbers like 1, 2, 3, 4. In Excel 2019, the total number of rows are 10,48,576. So total number of rows are 10,48,576 rows, and columns are represented by A, B, C up to Z. Then it repeat A, B up to AZ, then BA, BB, BC, BD up to BZ, then CA, C2, and like that it ends at XFD. We can see the total number of columns here. This is the first column, second column, third column, and so on. The last column can be seen by pressing the Ctrl and right arrow. Press Ctrl and right arrow on keyboard. You will see the last column of that workbook or worksheet. In MS Excel 2019, the last column is XFD, and before to move the first column, that is at A, we press Ctrl and then press left arrow on the keyboard. We will move to the first column and there are a number of rows that is denoted by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to 10,48,576. To move to the last row, we press Ctrl and down arrow on the keyboard. Here it is the last cell, 10,48,576. Again, to move to the first row, we press Ctrl and then press up arrow. So these are the some shortcut keys to navigate the cell, current cell, from first cell A1 to last cell or last column. We press Ctrl then right arrow, we move to the last column, then Ctrl left arrow, move to the first column, Ctrl down arrow, move to the last row, and Ctrl up arrow, move to the first row. These are the shortcut keys. So columns are represented by alphabet A, B, and then it is repeated and it ends at XFD. So total number of columns are 16,384 columns. These informations are important for interviews. In any interviews, if you say that I know Excel, then it will be asked what is Excel, in which Excel you are working. You have to ask the version of the Excel. Excel का वर्जन क्या है? तो इस वर्जन में आपका जो रोज एंड कॉलम है वो चेंज होगा.
आप जिस वर्जन में काम कर रहे हैं उसके कॉलम्स एंड रोज की संख्या पता कर लीजिए। कैसे पता करेंगे अभी जस्ट बताया, शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल एंड जो भी हमारे एरोज की है ऑन कीबोर्ड उसको यूज करके। कंट्रोल प्रेस करते हुए कंट्रोल प्रेस किए रखिए और जो भी हमारे मूवमेंट है जैसे राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, इस एरो को आप यूज कर सकते हैं। देन व्हाट इज सेल? In worksheet there are a number of cell, and cell is nothing but the intersection of row and column is called as cell. Each cell is represented by the combination of column and row. For example, the intersection of column D and row 3 will be represented as D3. This is the column D and this is the row 3. The intersection of column D and row 3 is this one cell. इस सेल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कॉलम और रो के हेल्प से होगा। आई मीन दिस सेल इज इक्वल टू D3 and this address will be denoted on this box, that is address box or name box. In this name box you will see the name of that cell. If we move to this cell then it is F4 and this will be shown in this name box. Similarly, if we click this cell, it is the intersection of column G and row 9, that is G9, and it is shown automatically in the name box. So this is the simple way. So cell is nothing but the intersection of row and column is a cell, and each cell is represented by the combination of column and row. For example, column D and row 3 will be represented as D3. D3 notation is the address of that cell. This D3 is the representation or notation of that cell, and it is known as an address of this cell, D3 cell, where we can insert our data. जो भी हमारे पास सेल है उस सेल में हम कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? जो भी हमारे पास बेसिक फैक्ट्स हैं, लाइक दैट फैक्ट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, etc. These are known as a data. Suppose we want to enter here the name of student Ram. We type on keyboard RAM. Then this is a data, and since it contains characters, so it is a text data. What type of data can be inserted in any cell? In any cell we can insert different type of data. Like first we can insert text data. We can insert text data like this. We can insert number. For example, we can insert 5. Similarly, this number may be integer number or whole number or a decimal number. So this number can be in form of whole number, for example this 5, and this number may be a decimal number. Decimal number, for example we can insert 23.78.
So this type of number is known as a decimal number. So in any cell we can insert text data, number data. We can also insert date. Date like 23. Today is 24, 22nd. So we can insert 22 oblique 04 dash 2023. This type of data is known as a date data. We can manipulate the date data to find the age or number of months, number of days between two dates. So these are the type of date data. We can again insert currency like rupees 23, dollar 23, like that. So the next data type may be currency. We can also set the symbol of currency by using cell format. Then next one is known as a Boolean data. Any Boolean data has only two values, either true or false. True or false. So this type of data is called Boolean data. For example, if we insert here 50 and we check whether it is a even number or odd number. To check the even or odd number, we will use a function that is called isEven. To insert any function, first we type equal sign, then we write the function name isEven. It will be shown in the dialog box. isEven. isEven. Then we equal isEven. Then we put opening bracket and we insert the number. Our number is stored in B6, so we click this B6. That address is automatically inserted in this function, and then we press enter. Yes, it is even number, so it shows true. If we change here 3, then it will show false. It is not a even number. If we write here 48, it will show again true. If we write here 27, means if this number is odd, it will show false, and if it is even, then it will show true. So this type of data is called Boolean data. The next data type is called formula. And this formula data types can be inserted with the starting symbol equal signs. To insert any formula, we have to type first equal sign. कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट करने के पहले हमें इक्वल साइन देना जरूरी है. जैसे सपोज I insert here 5 and insert at this column 6, and we want to sum these two numbers, so we will insert a formula. To insert a formula in this cell D9, we press equal sign, then we select this cell by clicking that cell, then we put here plus sign, then again click this cell. It will show these cells in a different color that is used in this formula. Then we press enter, it will show 5 plus 6, 11. So this type of expression
is called a formula. Any formula start with इक्वल साइन. कोई भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए हम उस सेल में इक्वल साइन लगाते हैं. इस तरह के डेटा को हम फॉर्मूला कहते हैं. एंड लास्ट डेटा टाइप इज कॉल्ड नॉट एप्लीकेबल. नॉट सॉरी n oblique a. This is the not applicable, means the cell is blank, like this cell, this is currently not used, so we say the data in this cell is not applicable. So these are the data type which are used in our Excel sheet. Okay, so the different type of data types are text, number, date, currency, boolean, formula, and not applicable. So there are 7 different data types. We can insert any data type in any cell. किसी भी सेल में कोई भी डेटा टाइप को हम इंसर्ट कर सकते हैं. So if we want to insert, Excel will automatically identify that the data is, whether it is text or whether it is number or date. It will automatically identify with the content of that cell. जो भी हम इस सेल में कंटेंट डालेंगे उस कंटेंट के हेल्प से वो इसका डेटा टाइप डिफाइन कर लेगा. तो जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया 45.7, ये डेसिमल नंबर हो गया या नंबर टाइप का डेटा हो गया. इस जगह पे जो अभी हमने चेक किया था ये इज इवन, तो ये हमारा बुलियन डेटा टाइप हो गया. इसी तरह से करेंसी में यदि हम डॉलर डाल दें, करेंसी वगैरह, इस जगह पे जिस सेल में करेंसी डालना है उसको आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स है. फॉर्मेट सेल्स में जाकर यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि क्या किस टाइप का हमें डेटा चाहिए. जनरल डेटा चाहिए, नंबर चाहिए, करेंसी चाहिए. यदि करेंसी चाहिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यदि इस सेल को हम इस फॉर्मेट में डालकर ओके कर दें, यहाँ कोई भी चीज़ यदि हम डालते हैं 34 एंटर प्रेस करें तो ये करेंसी ऑटोमेटिकली ले लेगा. यहाँ यदि आप डॉलर देंगे तो ये $34. दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड करेंसी डेटा. एंड डेट डेटा, दिस टाइप ऑफ डेटा इज डेट डेटा. एंड बुलियन डेटा has 2 different values, either true or false. Formula always starts with equal signs, and not applicable, blank cell is called not applicable. These are the some introduction about the data types that are used in our Excel sheet. In any Excel or in any version we can insert any data in any Excel. So here we have known what is cell, what is data types that are used in cell. Now we move to the other technical term that is called range. Range is nothing but the set of cells. If we drag the different cells on Excel sheets, then they are highlighted. इस highlighted set of cells को हम range कहेंगे. ये range हमारा कॉलम वाइज हो सकता है, जैसे यहाँ पे कॉलम हमने यूज़ किया. रो वाइज हो सकते हैं या आप इसको स्क्वायर और रेक्टेंगल फॉर्म में रख सकते हैं. तो दीज आर द कॉल रेंज. रेंज कैन बी denoted by the address of the cells. Suppose we want to show range in this cell, then we will write equal
the starting cell number, suppose B10, B2. This is the B2, and from B2 to F2. So to define the range, we put here colon sign, and then we type F2. It will automatically select the B2 to F2. This is the notation to show the range. रेंज को हम डिफाइन करने के लिए उस रेंज के स्टार्टिंग सेल और एंड सेल को शो करेंगे, यदि वो रो वाइज हो या कॉलम वाइज हो या रो रेंज हो। अभी हम यहाँ पे रो रेंज को सिलेक्ट किया, कॉलम रेंज को यदि सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस कॉलम रेंज को सिलेक्ट करने के लिए सपोज H1 to H10, it will automatically select H1 to H10. So this is the column range. And if we change this K10, then it will select H1 to K10, and this will be represented by this symbol. We can use either uppercase or lowercase to denote the cell. Both are equal. Since here is no any data, so it shows the error message. This range is further divided into two categories, that is continuous range and uncontinuous range. This is continuous range. This is also continuous range. This is also continuous range. But if we select this range and we want to select other range, so we put control and select the other range. Then these are two different range, and they are combined into a one range. So this is called uncontinuous range. We can also insert other range like this. So all range are denoted in some color that is shown here. So this type of set of cells is called uncontinuous range. Individually, this is the continuous range. This is also individually continuous range. This is also individually continuous range. But I have selected all these three continuous range in a single range, and we can define it in name box also. So this type of range is called uncontinuous range. To select uncontinuous range, we always use control button on keyboard. By pressing control, we press control button and drag the select the range set of cells to define the uncontinuous range. So this is the cell that is shown here, F9, and if we want to add some data in this cell, we simply type the data. It will automatically identify the data types, and we can manipulate that data for our requirement. Now there are different type of functions, and that functions is available on at this place, auto sum. If we click this downward key, it will show different type of functions. If we select more functions, it will show the total different type of functions that are used in our Excel. These functions are used for analysis purpose, in research purpose. If we want to use the function, we will select it. There are different categories of functions.
that category will be shown by this drop down button. If we click this drop down button, it will show the different type of categories. First is most recently used. हम जो भी एक्सेल सीट में फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसकी बार बार यूज़ करते हैं, उनकी लिस्ट ये रखता है जिसको कहते हैं मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। पूरी कैटेगरी के ऑल फंक्शंस को यदि देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऑल को क्लिक करेंगे। फंक्शंस एक्सेल में जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस यहाँ पे डिनोट होंगे। यदि हम इसमें फाइनेंशियल फंक्शन दैट इज यूजफुल फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल फंक्शंस को यूज़ करना चाहें तो आप इस फाइनेंशियल कैटेगरी को सिलेक्ट करें। यहाँ पर सारे फाइनेंशियल फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनका आप यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट बुक में और एजुकेशन में। देन डेट एंड टाइम के लिए हम डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करेंगे। डेट से रिलेटेड सारे फंक्शंस यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। अगेन नेक्स्ट है मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। मैथ से रिलेटेड लाइक एब्सोल्यूट, कॉस, ए कॉस, साइन, एक साइन, इन सब फंक्शंस का यदि लिस्ट चाहिए तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, टैन, कॉट एट्सेट्रा। देन स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो हमारे एनालिसिस में काम आएंगे उनको हम यूज़ कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल कैटेगरी से। अगेन लुकअप एंड रेफरेंस, यहाँ जो भी हम रेंज सेलेक्ट करते हैं दैट रेंज इज स्टैटिक। इफ़ वी सेलेक्ट A1 to B10 then it is a static range. If we want to make it dynamic, I mean जैसे हम डेटा एन करें, सपोज हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया B2 to B10। अभी हमें रिक्वायरमेंट थी इस रेंज की। इस रेंज में हमने डेटा डाल दिया 1 2 3 4। सपोज हमें इस 4 सेल की ज़रूरत थी, हमने डेटा डाल दिया। यदि इसको हम कहीं डिफाइन कर दें तो ये हमारा स्टैटिक रेंज होगा। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल सम फंक्शन है। इस फंक्शन में हम इस सेल कॉलन से लेकर इस सेल तक को हम सम करना चाहते हैं तो ये हमारा सम दिखाएगा 10। अब ये जो हमारा रेंज है ये रेंज स्टैटिक रेंज है। इस स्टैटिक रेंज में यदि हम यहाँ पर 6 दे दें तब भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। यदि हम यहाँ पर 7 भी दे दें, कोई भी डेटा इसके बाद दे तो उसकी एडिशन इसमें नहीं होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक ये रेंज इस डेटा को यूज़ करें तो हमें डायनेमिक रेंज की ज़रूरत पड़ेगी। एंड दैट टाइप ऑफ डायनेमिक रेंज विल बी that type of dynamic range can be created with the help of lookup and reference. So all those functions that are used in lookup and reference, they are shown here. Then there is a database functions. To handle the database we use this function like max value find out करना या मीन वैल्यू फाइंड आउट करना, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, एवरेज फाइंड आउट करना एट्सेट्रा। इस तरह के काम को हम डेटाबेस से कर सकते हैं। टेक्स्ट से रिलेटेड जैसे टेक्स्ट में प्रॉपर कैरेक्टर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना, नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना, इस तरह की चीज़ों को के लिए जो भी फंक्शन यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट डेटा टाइप। एंड लॉजिकल डेटा जो हम पहले देख चुके हैं, इफ़ एरर, IFS, इज डिजिट एंड और इस तरह के लॉजिकल फंक्शन के लिए लॉजिकल कैटेगरी। इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन यदि चाहिए तो इसके लिए ये फंक्शंस है। और यदि आप अपना फंक्शन कोई बनाना चाहते हैं यूजर डिफाइंड तो उसके लिए कौन सा तरीका यूज़ करेंगे और कौन से फंक्शन को यूज़ करेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अदर कैटेगरीज हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड फंक्शंस, क्यूब से रिलेटेड फंक्शंस,
कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड फंक्शंस और लास्ट में वेब से रिलेटेड फंक्शंस. These are the different categories of the functions we can use as per our requirement. फाइनेंशियल कॉमर्स स्टूडेंट्स मैक्सिमम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल, डेट टाइम, स्टैटिस्टिकल, मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, और समटाइम्स दे आर आल्सो यूज्ड लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के लिए हर कैटेगरीज के हर तरह के वर्क के लिए यहाँ पे फंक्शंस बने हुए हैं और इस सारे फंक्शंस की इंफॉर्मेशंस भी दी हुई है. कहीं भी यदि हमें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि ये क्या चीज़ है या कोई हम हेल्प चाहते हैं तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. इस हेल्प बटन को हम क्लिक करेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क को क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर जो भी चीज़ जानना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए. उसकी स्टेप्स बता देंगे, कैसे यूज़ करना है वो बता देंगे. लेकिन इस हेल्प को यूज़ करने के लिए आपका सिस्टम पर इंटरनेट ऑन होना चाहिए. जब तक आप इंटरनेट से ऑन नहीं रहेंगे ये वैल्यू यहाँ पर इसका हेल्प नहीं मिलेगा. ऑनलाइन हेल्प अवेलेबल है. इवन यदि आपको टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है, फार्मूला एंड फंक्शंस क्या होते हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशंस यहाँ दी हुई है. ओवरव्यू ऑफ फार्मूला इन एक्सेल क्या होंगे उससे रिलेटेड इवन वीडियो भी दिए हुए हैं. आपको करके भी दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं. तो बेसिक जानकारी यही होनी चाहिए हम कैसे एक्सेल को यूज़ करें. किसी अदर हेल्प की ज़रूरत नहीं है. यहाँ से आप टेक्स्ट और वीडियो ले सकते हैं. सिंपल केवल वीडियो देखना चाहते हैं यहाँ पे शो ट्रेनिंग में जाइए और शो ट्रेनिंग में जाकर जिस चीज़ का भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, जैसे कैसे हम एक्सेल को स्टार्ट करें उसका वीडियो, रो कॉलम एंड सेल्स को कैसे हम चेंज करें या उसको कैसे हम हैंडल करें, फार्मूला फंक्शंस को कैसे हैंडल करें, फॉर्मेटिंग किस तरह से होंगे, टेबल्स चार्ट्स कैसे क्रिएट होंगे, पाइवट टेबल क्या होते हैं, लिंक डेटा क्या होते हैं, एटसेट्रा. इन सारी चीज़ों की वीडियोस लिस्ट यहाँ पे दी हुई है. आप यदि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो इस जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड यहाँ पर वीडियो आप देख सकते हैं और उसके हेल्प से इस एक्सेल को बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने रियल लाइफ में कहीं भी रिक्वायरमेंट पर यूज़ कर सकते हैं. ये ब्यूटी है इस एक्सेल की. तो हमें हेल्प के लिए हेल्प बटन दी हुई है. फर्दर फाइल, होम, इंसर्ट, ये सब कॉमन मेनूज़ हैं जो हर विंडोज़ एप्लीकेशंस में होते हैं और वही सारे इंफॉर्मेशंस आपको मिलेंगे. फाइल ओपन करना, डिलीट करना, कॉपी करना, रीनेम करना, एटसेट्रा. इनसे रिलेटेड इंसर्ट में जो फंक्शंस वहाँ पे पढ़ते हैं वो सारे होंगे और कुछ नई फंक्शंस एक्सेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे होंगे. पेज लेआउट, यदि आप अपने पेज को एडजस्ट करना चाहते हैं, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ये सब चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं. फार्मूला कोई चाहिए तो आप यहाँ पे इस फार्मूला मेनू से भी यूज़ कर सकते हैं और होम बटन के इस ऑटो सम के इस ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करके मोर फंक्शंस में जाकर भी आप फार्मूला सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ सारे फंक्शंस और फार्मूला का कैटेगरीज शो किया हुआ है. आप उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अभी हमने बताया फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. डेटा को यदि सॉर्ट करना है, सपोज हमने यहाँ पे टाइप किया 3, 7, 8, 1, 9, ये सारे डेटा है, इसको हमें सॉर्ट करना है इन असेंडिंग. तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और डेटा पोर्शन में जाकर यहाँ सॉर्टिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस है. अल्फ़ाबेटिक सॉर्टिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो इस फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर वी विल सेलेक्ट दिस Z2A. फॉर इंक्रीजिंग इफ वी क्लिक दिस इट विल बी ऑटोमेटिकली अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इसको यदि हम Z2A में क्लिक कर दें इट विल ऑटोमेटिकली अरेंज दैट डेटा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो सॉर्टिंग से रिलेटेड फिल्टर करना है, इसमें से हमें सिर्फ वैसे डेटा को सिलेक्ट करना है जो 3 से लेस हो, तो उसके लिए हम फ़िल्टर को यूज़ करेंगे. जैसे हम यहाँ पर फ़िल्टर बटन को दबा दें तो इस जगह पर
एक ड्रॉप डाउन बटन आएगा, इसमें से सेलेक्ट ऑल को पहले हम ऑफ करेंगे और वन को फिल्टर करना चाहते हैं तो हम वन क्लिक करेंगे। जैसे ही वन क्लिक करेंगे यहाँ सिर्फ ये वन डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से फिल्टर का काम भी कर सकते हैं। रिव्यू, कोई भी रिव्यू है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे दी हुई हैं। नेक्स्ट हम लोग यूज़ करने चलते हैं। वन थिंग मोर, डेटा में जो फिल्टर्स हमारा है इसके दो तरह के फिल्टर्स होते हैं। एक सिंपल फिल्टर और दूसरा है एडवांस्ड फिल्टर। सिंपल फिल्टर के लिए हम इस बटन को यूज़ करेंगे, एडवांस्ड फिल्टर के लिए इसको यूज़ करेंगे। फर्दर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फिल्टर का काम करेंगे। मेनली इस जगह पे इस वीडियो को बनाने के पीछे रीज़न था, जब हम फार्मूला यूज़ करते हैं उस फार्मूला में हम किसी सेल का रेफरेंस देते हैं। ये सेल का रेफरेंस जो हमारा होता है वो दो तरह के हो सकते हैं। रेफरेंस ये मेनली दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट और दूसरा को कहते हैं रिलेटिव। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक और भी रेफरेंस बनाते हैं जिसको कहते हैं मिक्स्ड मोड। तो रेफरेंस के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो टाइप्स होते हैं रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटिव, देन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट और थर्ड होता है मिक्स्ड। इस मिक्स के दो फॉर्म होंगे, एक को हम कहेंगे रिलेटिव कॉलम एंड एब्सोल्यूट रो, एब्सोल्यूट रो। दूसरा मिक्स में होता है इसका अपोजिट, एब्सोल्यूट कॉलम, एब्सोल्यूट कॉलम एंड रिलेटिव रो। तो तीन तरह के रेफरेंसेस जनरली यूज करते हैं, मेनली टू हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, और इन दोनों के हेल्प से बन गया मिक्स। जब हम किसी एड्रेस को डिनोट करते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक कॉलम और दूसरा रो। यदि हम दोनों को डायनेमिक रखें, रो और कॉलम बोथ को यदि हम डायनेमिक रखें तो ऐसे रेफरेंस को हम रिलेटिव कहेंगे। यदि हम रो और कॉलम दोनों को फिक्स कर दें तो इस तरह के रेफरेंस को हम एब्सोल्यूट कहेंगे। और यदि दो में से किसी एक को रिलेटिव और दूसरे को एब्सोल्यूट बनाए तो ऐसे मोड को हम मिक्स्ड मोड या मिक्स्ड रेफरेंस कहेंगे। तो मिक्स्ड में दो तरह के होंगे, रिलेटिव कॉलम, एब्सोल्यूट रो, या इसका अपोजिट एब्सोल्यूट कॉलम, रिलेटिव रो। इनको डिनोट कैसे करते हैं हम? रिलेटिव मोड को शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेल का एड्रेस। सपोज वी वांट टू शो द relative address of C4, this cell, so we will write here C4 only. We can use C in either uppercase or in lowercase, both are equal. C4. This type of reference is called relative referencing, and C4, this is the relative address mode. And if we want to show the absolute of that cell, then we put $sign before column, and again we press $for row.
रो और कॉलम दोनों को फिक्स करने के लिए हम लोग उसके पहले डॉलर को यूज़ करते हैं। और यदि हम चाहें कि इसको यूज़ करें यदि हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं रिलेटिव कॉलम, तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा सी और एब्सोल्यूट रो। एब्सोल्यूट बनाने के लिए रो के पहले हम डॉलर कर देंगे C4। दिस टाइप ऑफ reference is called रिलेटिव कॉलम एब्सोल्यूट रो। यहाँ पर कॉलम हमारा रिलेटिव है और जो रो है वो हमारा एब्सोल्यूट या फिक्स्ड है। इसी का अपोजिट यदि हम एब्सोल्यूट कॉलम को यूज़ करना चाहें और रिलेटिव रो को, तो हमें इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से यूज़ करना होगा। कॉलम को फिक्स करने के लिए डॉलर, देन नेम ऑफ कॉलम, एंड आफ्टर दैट वी प्रेस रो। यहाँ पर हमने एक ही सेल के डिफरेंट रेफरेंस मोड को शो किया। C4 को हमने रिलेटिव दिखाना है तो कहीं भी रिलेटिव दिखाने के लिए C4 यूज़ करेंगे। एब्सोल्यूट फिक्स करने के लिए $C $4 यूज़ करेंगे। मिक्स मोड यूज़ करना है, कॉलम को रिलेटिव रखना है और रो को फिक्स करना है तो रो के पहले डॉलर लगाएंगे। यदि कॉलम को हमें फिक्स करना है, रो को रिलेटिव रखना है, तो कॉलम के पहले डॉलर लगाएंगे। किसी भी सेल को यदि हम यहाँ पे यूज़ करना चाहें $A1, इस सेल को यदि हमें currently it is in relative mode, if we want to make it absolute, we press function key on keyboard, that is called F4. If we press F4, then that relative address is converted into absolute address because dollar is placed before the column and row. And if we want to again change this mode, then we press again F4. It will convert into relative column and relative column and absolute address, absolute row. Again, if we press again F4, it will convert it into absolute column and relative row. And if we press again F4, then it will again move into the relative address. इस तरह से हम अपने एड्रेस को डिफरेंट रेफरेंस मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी यूजेस क्या है, क्यों ऐसा करते हैं, उसका रीज़न हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका रीज़न क्या होता है और रिलेटिव एड्रेस क्यों हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एब्सोल्यूट एड्रेस की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी और मिक्स्ड की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम देखना चाहते हैं यहाँ पे। तो इसको यूज़ करने के लिए सपोज़ हमने C4 में 5 को एंटर किया, D5 में हमने 6 को एंटर किया और अब कहीं पर हम यदि इसका मान लीजिए यहाँ हम एक फॉर्मूला ऐड करते हैं इक्वल, और इन दोनों नंबर को हम सम कहते हैं, तो सम का फंक्शन यूज़ करेंगे सम, देन ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट एंड वी क्लिक दिस सेल, देन पुट प्लस एंड देन वी क्लिक second address and we put closing bracket, then press enter। जैसे ही हमने enter प्रेस किया तो यहाँ पर ये हमारा इन दोनों का सम दिखाया। अब इसके एड्रेस को यदि देखें यहाँ पर, तो इस सेल की जो भी कंटेंट है वो इस टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले होगा ऑलवेज। जो भी करेंट सेल होते हैं उसके कंटेंट्स यहाँ पे शो होंगे।
इस कंटेंट्स को देख करके आप कह सकते हैं कि दोनों सेल रिलेटिव मोड में है। C4 और D5 दोनों रिलेटिव मोड में है। अब इस सेल में दो तरह की वैल्यूज है। E9 है, ये हमारा E9 है, नेम बॉक्स में आप देख सकते हैं। E9 में दो तरह की वैल्यूज है। एक वैल्यू हमारा इसका जो इन दोनों का सम है, जो रियल वैल्यूज है, लेकिन इसके अंदर जो हमने टाइप किया वो हमारा एक फॉर्मूला है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्मूला बार में दिखेगा, इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। और इस फॉर्मूला बार में उसके एड्रेस दिखेंगे। यदि हम इस सेल को कॉपी करें और इसको यदि हम कहीं पेस्ट कर दें, मान लें कि हम इस जगह पे पेस्ट कर दें, तो पेस्ट करने के लिए हम प्रेस करते हैं शॉर्टकट की कंट्रोल V, या माउस का राइट बटन दबाकर हम पेस्ट का की यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 दिखा रही है। अब ये यहाँ 11, जनरली यदि हम 5 को कॉपी करें और उसको हम कहीं पर पेस्ट कर दें, कंट्रोल V माउस का राइट बटन से पेस्ट करें, तो ये इसकी वैल्यू को शो कर रहा है। क्योंकि इस सेल में केवल वैल्यू है, कोई फार्मूला एंटर्ड नहीं है। लेकिन इस सेल में दो वैल्यू है और दोनों अलग अलग है, एक फार्मूला है और दूसरा वैल्यू है। तो आपके वर्कशीट पर, यहाँ इस वर्कशीट पर केवल वैल्यू दिखेगा, फार्मूला बार पे दिखेगा। लेकिन जब इसकी कॉपी करते हैं तो ये इसकी वैल्यू कॉपी यहाँ नहीं करता, बल्कि इसका फॉर्मूला कॉपी करता है। यदि आप इसकी फॉर्मूला को देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इसका फॉर्मूला तो कुछ और है, इसकी फॉर्मूला कुछ और है। ये क्यों हुआ? इस रिलेटिव मोड की वजह से हुआ। अब देखिए इस रिलेटिव मोड की क्या खासियत होती है। इस जगह पे आपने लिखा है C4, यदि आप इसकी वैल्यू देखेंगे E7 और F8, E7 आपका E7 ये वैल्यू है। यहाँ पर यदि हम 7 दें, इस वैल्यू को हम मान लीजिए कि रेड कलर से शो करते हैं, इसको हम रेड कलर से शो कर दें, ये हमारा E7 का वैल्यू है। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर E7 दिया, यहाँ पर ऐड कर लिया। और दूसरा इसका फॉर्मूला था F8, F8 हमारा कहीं पे होगा, आप ये देखिए इस जगह पे F8 है। इस जगह यदि हम मान लीजिए कि 3 देते हैं तो 7 + 3 यहाँ पे 10 डिस्प्ले होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या लॉजिक है? इस लॉजिक को समझना ही इस वीडियो का मेन मकसद है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ऑलवेज अपने फॉर्मूला में। ये ऐसा क्यों लिख रहा है? जब आप इस जगह पे फॉर्मूला C4 हमने इस जगह पे इस सेल को यूज़ किया, तो इस सेल का एक्चुअल में देखा जाए इसकी मीनिंग क्या है, ये इस सेल में उसकी वैल्यू शो कर रहा है, फॉर्मूला बार में हमने जो फॉर्मूला एंटर किया वो शो कर रहा है। लेकिन इसकी मेमोरी में क्या है, इसकी मेमोरी में कुछ और रखा हुआ है, वो क्या है वो जानना जरूरी है। इसकी मेमोरी में लिखा हुआ है कि इस सेल से 2 सेल लेफ्ट, 2 सेल लेफ्ट, 2 सेल्स लेफ्ट, एंड इस सेल से 1 2 3 4 5 सेल अप, 5 सेल्स अप। एक्चुअल में हम यहाँ पर जो फॉर्मूला टाइप किया वो फॉर्मूला ये कह रहा है कि आप इस सेल से 2 सेल लेफ्ट जाइए और 5 सेल अप जाइए, जिसमें इसका पहला वैल्यू है, और इसको ऐड कीजिए दूसरे सेल से। दूसरे सेल का इस करेंट सेल से क्या रिलेटिव एड्रेस है, इस सेल से इसका करेंट रिलेटिव एड्रेस है 1 सेल लेफ्ट, 1 सेल लेफ्ट and 1 cell left and 1 2 3 4 cell up, 4 cells up। तो ये एक्चुअल में इस जगह पे इसकी मेमोरी में ये फॉर्मूला लगा हुआ है।
अब जब इसको कॉपी हम इस जगह पे किए तो इस जगह पर कॉपी करने से ये इस फॉर्मूले जो इसकी मेमोरी में उसको कॉपी किया। अब इस जगह से आप फिर चेक कीजिए, 2 सेल लेफ्ट, 5 सेल अप, 1 2 3 4 5 सेल्स अप, दिस इज 7 एंड दूसरा ऑपरेंड हमारा है 1 सेल लेफ्ट, 4 सेल अप, 1 सेल लेफ्ट मीन्स दिस सेल, 1 सेल लेफ्ट, 1 2 3 4 सेल अप। तो ये इस दोनों का सम करता है। इस तरह से रिलेटिव एड्रेस यदि हम रखते हैं तो इसका एड्रेस करंट सेल से उस सेल का रेफरेंस चेक करता है, जिसकी वजह से इसकी फॉर्मूला चेंज होगा। यदि इसकी कॉपी हम अगेन कॉपी करें और किसी और जगह पे हम इसको पेस्ट कर दें, सपोज कीजिए हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल डी भी लिख सकते हैं या सिंपली आप इसको माउस राइट बटन से पेस्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, इस जगह पे कॉपी हुआ ये फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। 2 सेल्स लेफ्ट, 1 2 2 सेल लेफ्ट, 5 सेल अप, 1 2 3 4 5। यदि यहाँ पे हम कुछ डाल दें 8, ऑटोमेटिकली देखिएगा उसका सम वहाँ पे चला जाएगा। देन 1 सेल लेफ्ट एंड 4 सेल अप, 1 सेल लेफ्ट, 1 सेल लेफ्ट, 4 सेल अप, 1 2 3 4 सेल अप। यहाँ आप कोई वैल्यू डाल दें 2 और सपोज 5, तो ये 8 और 5 को ऐड कर देगा। इस तरह से रिलेटिव एड्रेस का कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जब हम फॉर्मूला को कॉपी करें तो उसके रिलेटिव एड्रेस नहीं आए, फिक्स्ड एड्रेस आए। सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे यूज करते हैं। एब्सोल्यूट एड्रेस का क्या यूज है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं 4 6 3 2 2 प्लस 5। हमने ये डिफरेंट डेटा को ऐड किया और इसमें टोटल नंबर ऑफ डेटा हमारा 5 है, तो हमने इसकी संख्या को यहाँ पे रख दिया 3 2 5, 5 डिफरेंट डेटा है। यदि हम इस सारे डेटा का एवरेज निकालना चाहते हैं तो हमारे पास फंक्शन में एक फॉर्मूला है एवरेज, हम यहाँ पे एवरेज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एवरेज फंक्शन यूज़ नहीं करें, हम मैनुअली कैलकुलेट करें, अपना फॉर्मूला यूज़ करें। तो इक्वल साइन यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इस फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट सेल, देन प्लस साइन, देन अगेन सेकेंड सेल्स। वैसे हम रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देन थर्ड सेल, देन नेक्स्ट सेल, देन नेक्स्ट सेल, और इसको एंटर कर दें तो इसका सम इस जगह पे आ गया। लेकिन आपको मालूम है कि जब हम फॉर्मूला निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज निकालते वक्त हमें उसके टोटल नंबर के सम को हमें उसकी टोटल काउंटिंग से डिवाइड करनी होती है। तो यदि हम इस सारे नंबर का एवरेज निकालना चाहें तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस सम डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो ये हमारा एवरेज देगा 20। सम इसका है और नंबर ऑफ डेटा हमारा 5 है, तो 20/5 दैट इज 4। ये हमारा एवरेज निकल गया। अब यदि इस एवरेज को मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई डेटा नहीं डालें और इसको यदि हम कॉपी कर दें, इसको हम यहाँ पर कॉपी कर दें कंट्रोल P, तो इसका रिजल्ट हमें एवरेज नहीं मिल रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि ये सारा का सारा वैल्यू हमारा रिलेटिव मोड में है। तो यहाँ पर हमारा ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू फिक्स्ड है, चेंज नहीं करना हमें। ये यदि आपका चेंज हुआ ये एड्रेस, जैसे यहाँ पर हमने दिया E6/E2 और इस फॉर्मूले को कॉपी किया यहाँ पर, तो ये बता रहा है E10 to E6 ड्यू टू दिस रिलेटिव मोड। तो इसका वैल्यू यहाँ पर फिर 4 आए, इसके लिए हमको क्या करना होगा कि हमें इस फॉर्मूला को बनाना होगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कैसे बनाएंगे, हम उस फॉर्मूले में जाएंगे, F4 को प्रेस करेंगे, हमारा ये सम का जो एड्रेस है वो फिक्स हो गया। और इसी तरह से हम
इस काउंटिंग के फॉर्मूले के पहले बाद में हम F4 को प्रेस करेंगे। ये भी हमारा फिक्स हो गया। अब यदि एंटर प्रेस करें तो ये 20/5 आप देख सकते हैं। एब्सोल्यूट एड्रेस E6, ये हमारा E6 है और ये हमारा E2 है। तो E6 और E2 को हमने फिक्स कर दिया। अब यदि इसकी हम कॉपी करें, कहीं भी कॉपी करें, तो इसका रिजल्ट ऑलवेज हमको मिलेगा 4। कहीं भी आप कॉपी करके देख लें। क्यों? क्योंकि इसका सम और इसका सम, इस सारे नंबर का सम और इसकी टोटल काउंटिंग को हमने फिक्स कर दिया। अब कहीं भी आप जाएंगे तो इस जगह पे जो फॉर्मूला एंटर्ड है वही फॉर्मूला यहाँ भी दिखेगा, वही फॉर्मूला यहाँ भी दिखेगा और उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट का कंसेप्ट। यदि हमने एब्सोल्यूट बना दिया तो हमारे जो एड्रेस है फ्रॉम करेंट लोकेशन से उस लोकेशन का एड्रेस फिक्स हो जाता है। इसका मतलब हमारा इस जगह पर जो दिया हुआ एड्रेस है वो एड्रेस हमेशा क्या होना चाहिए, चाहे ये सेल कहीं भी हो, ये हमेशा इस सेल और इस सेल को यूज करेगा। इस सेल को डिवाइड करेगा वो 5 से, चाहे हम इस फॉर्मूले की कॉपी कहीं भी कर दें। तो ये हमारा रूल होता है रिलेटिव का और एब्सोल्यूट का। हमने दोनों तरीका आपको बताया। यदि कहीं पे डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज करके प्रीवियस कंसेप्ट को फिर से आप वॉच कर लेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और ये जो हमने आपको कंसेप्ट बताया कहीं आपको जल्दी नहीं मिलेगा। हमें नहीं लगता कि किसी वीडियो में आपको ये इस तरह से कंसेप्ट बताया गया कि रिलेटिव एड्रेस क्यों चेंज होते हैं और एब्सोल्यूट एड्रेस चेंज नहीं होते हैं। तो रिलेटिव का मतलब है करेंट एड्रेस से उस एड्रेस का लोकेशन, और एब्सोल्यूट का मतलब हो गया जो एड्रेस हमने दिया वो फिक्स। अब उसको कहीं भी कॉपी करेंगे उस फॉर्मूले को, वो ऑलवेज वही रहेगा, इसलिए रिजल्ट भी आपको ऑलवेज सेम मिलेगा। तो जब भी हम फॉर्मूला एंटर करते हैं इस रिलेटिव और एब्सोल्यूट का कंसेप्ट यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें रिलेटिव को तो मूव कराना है, यानी कॉलम को हमें मूव कराना है या चेंज करना है, लेकिन रो को फिक्स रखना है। तो ऐसा यदि काम करना चाहते हैं तो हमको उसको रिलेटिव कॉलम और एब्सोल्यूट रूप में कन्वर्ट करना होगा। और यदि हमारा एब्सोल्यूट कॉलम एब्सोल्यूट फिक्स रहे और रिलेटिव चेंज हो तो उसको हम $C4 से दिखाते हैं। तो ये हमारा एक्चुअल वीडियो इसी चीज़ को समझाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। और अदर जो इसके शॉर्टकट कीज़ हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम इस 2 और इस 5 और 6 के बीच में हम एक रो को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इंसर्ट इस जगह पे माउस राइट बटन रखेंगे रो पर और इंसर्ट को क्लिक करके इंसर्ट को क्लिक करेंगे तो इन दोनों रो के बीच में एक न्यू रो आ जाएंगे। यदि डिलीट करना है आप वही काम यहाँ से फिर डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हम किसी कॉलम के बीच में कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके हेडर में जा कर के माउस का राइट बटन दबाइए, इंसर्ट दीजिए, एक कॉलम इंसर्ट होगा। यदि इसको डिलीट करना है माउस का राइट बटन दबाइए, डिलीट कीजिए। इस तरह से यदि कंटेंट को क्लीन करना है आप उस रेंज को सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए हमें इसके डेटा को डिलीट करना है, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिलीट क्लिक कर देंगे। तो ये इंटायर रो पूछ रहा है, इंटायर कॉलम पूछ रहा है, आपको इंटायर कॉलम नहीं जस्ट इस डेटा को डिलीट करना है, आप सिलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन को दबा दीजिए। तो ये हमारा डेटा डिलीट होगा। इस तरह के जो भी नेविगेशन और जो भी अदर इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको हेल्प से मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं पे हमें इसकी मान लीजिए इसमें हमें मैक्स निकालना है, तो मैक्स निकालने के लिए हम यहाँ पर इक्वल लिखेंगे और देन मैक्स का बटन जो कि स्टैटिस्टिकल टूल्स का है, हम यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट देकर इसकी रेंज को सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट कर
क्लोजिंग ब्रैकेट और एंटर प्रेस जैसे करेंगे, इस सारे नंबर में जो मैक्स डेटा है वो डेटा यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। तो इस तरह से हम फिल्टरिंग कर सकते हैं। इसमें यदि हम किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट सेल्स रूल, और यहाँ पर यदि हम चाहते हैं कि 3 से ऊपर जितने भी है वो सारे हाईलाइट्स हों, तो ग्रेटर देन यहाँ पर हम 3 यूज़ कर देंगे, 3। और इसके बाद इसकी डिफरेंट कलर्स होते हैं, हम इसको रेड में दिखाना चाहते हैं, रेड दिखा दिया और ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए जो भी 3 से हमारा बड़ा है वो ऑटोमेटिकली रेड कलर में हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स वगैरह बहुत सारे काम कर सकते हैं। हमने बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया है, और इसमें यदि आप इसको क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला है, इसके साथ वैल्यूज़ भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप यदि किसी सेल के चाहते हैं कि डिलीट करें, तो यहाँ एक क्लियर बटन है। क्लियर में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसका कंप्लीट चीज़ को यदि डिलीट करना चाहते हैं, जैसे इसकी वैल्यू को, फॉर्मूला को, कमेंट्स को, इसमें कमेंट्स भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें को यदि एक साथ आप डिलीट करना चाहते हैं तो क्लियर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसके फॉर्मेट को, फॉर्मेट कैसे यूज़ करते हैं ये आपको बताया था। उस सेल को सिलेक्ट कीजिए या उस रेंज को सिलेक्ट कीजिए, माउस का राइट बटन दबाइए, फॉर्मेट सेल पे जाइए, जो भी फॉर्मेटिंग करना है वो फॉर्मेटिंग कर दीजिए। तो ये जो हमारा फॉर्मेट होता है इसको कहते हैं फॉर्मेट। इस सेल में कई तरह के वैल्यूज़ हैं। पहला वैल्यूज़ होगा, दूसरा फार्मूला होगा, फॉर्मेटिंग होंगे, इस सेल का कमेंट होगा। वो सारी चीज़ों को आप एक साथ क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर ऑल दीजिए। इसके फॉर्मेट को यदि डिलीट करना चाहते हैं, क्लियर फॉर्मेट दीजिए। कंटेंट्स केवल डिलीट हो, फॉर्मेट वही रहे, तो कंटेंट्स को क्लिक कीजिए। कमेंट्स इसका डिलीट हो जाए, बाकी सब चीज़ रह जाए, तो सिर्फ क्लियर कमेंट्स कीजिए। इसमें URL लिंक भी हो सकते हैं, तो क्लियर हाइपर लिंक करेंगे। डेटा फॉर्मेट सब वही रहेगा, केवल लिंक डिलीट होगा। तो इस तरह से आप किसी सेल के कंटेंट्स और उसके सारे अदर चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। तो इस पर हम एक कैलकुलेशन करके देखते हैं कि किस तरह से हमारा डेटा का काम होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक डेटा दिया हुआ, हमने तो यहाँ पे सारा कैलकुलेशन कर रखा है, लेकिन हम इस कैलकुलेशन को डिलीट करेंगे। यहाँ से हम इस सारी को डिलीट करते हैं। किस तरह से हम फास्टली सारा काम करते हैं वो आपको दिखाना चाहते हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे, हेडर वगैरह सब सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो कभी फिर मौका होगा तो दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस 3 का सम करना है, तो इस 3 को सम करने के लिए यहाँ पर हम ऑटो सम यूज़ कर सकते हैं या अपना फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ऑटो सम यूज़ करने के लिए इस सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर ऑटो सम को क्लिक कर दिया, तो ये उस रो में जितने भी सेल्स हैं जिसमें नंबर है, सिर्फ नंबर, तो यहाँ पर 1 में भी नंबर है लेकिन बीच में एक टेक्स्ट आ चुका है, इसलिए इसको इग्नोर करेगा वो। इस पूरे सेल में कंटिन्यूअस रेंज में जो भी हमारा नंबर है उनका ये सम कर देगा 248। या इसका दूसरा तरीका, हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इक्वल लिखेंगे, सम लिखेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट, और फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, इसको ड्रैग करके हम अपने सारे रेंज को सिलेक्ट किया, क्लोजिंग ब्रैकेट देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं या ऑटो सम से भी क्लिक कर सकते हैं। इसमें एक फंक्शंस होता है, बहुत अलग चीज़ है। जैसे 1 प्रेस करें और यहाँ पर हमने 2 प्रेस किया। अब यदि हम चाहते हैं कि इसके आगे ये कंटिन्यू करें, तो हम इन दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे और इसके राइट साइड बॉटम कॉर्नर में एक प्लस का सिंबल होगा, उसको आप ड्रैग कर दीजिए। जितनी दूर तक ड्रैग करेंगे इन दोनों के कंटिन्यूएशन में वो काम कर देगा। 1 2 3 4 5 6 हमें एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से यदि हम और भी काम करना चाहें, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 5 दिया और इस जगह पे हमने 10 दे दिया, तो अब यदि इसको हम सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर दें तो ये 5 के इंटरवल पर इसकी एंट्री कर देगी।
इसी तरह से अदर वर्क भी कर सकते हैं आप, इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, रो वाइज भी कर सकते हैं। रो वाइज आई मीन मान लीजिए कि 5 और इस साइड में हमने 10 दे दिया और इसको ड्रैग कर दिया इस तरीके से, तो इसमें ये ऑटोमेटिकली एंटर कर देगा। इतना ही नहीं, यदि हम मान लीजिए कि यहाँ पे यूज़ करते हैं जैन नेक्स्ट फैब, तो इस दोनों को यदि हम सिलेक्ट करके आगे क्लिक कर दें तो ये उस ईयर का जितना भी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करता रहेगा। तो ऐसे लिस्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं कस्टम लिस्ट। ये कस्टम लिस्ट भी अपना भी बना सकते हैं और इसके कुछ लिस्ट अपने बने हुए हैं, जैसे ये नंबर का लिस्ट हो गया या आपके मंथ का लिस्ट हो गया या वीकडेज हो गया। मान लीजिए हमने यहाँ पे डाल दिया मंडे और नीचे लिख दिया ट्यूसडे और इसको ड्रैग कर दें इस प्लस बटन को, तो ये वीक का सारे वीक का नाम ऑटोमेटिकली एंटर कर देगा। आप इसके विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं इसके हेल्प से, जितना रिक्वायरमेंट हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके हाइट को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, किसी कॉलम किसी रो की हाइट को डिक्रीज इंक्रीज करना हो यहाँ से कर सकते हैं, और किसी विड्थ को किसी कॉलम के विड्थ को इंक्रीज करना हो तो इस हेडर से आप इसको जहाँ पे प्लस सिंबल है आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये सब फीचर्स इसके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा चीज़ आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर होगा। हम इस जगह पर ये फॉर्मूला एंटर किया और यदि यहाँ पर इस प्लस सिंबल को क्लिक कर दें तो ये सारा का सारा कॉपी होगा। लेकिन यहाँ पर कॉपी क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी होगा। अब यदि इस फॉर्मूला को कॉपी करें, हम एक इंडिविजुअल कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करें और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर दें कंट्रोल भी, तो देखिए इन तीनों का सम आ गया। अब ये इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, करेंट सेल से 3 सेल लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए और फर्स्ट सेल तक उसको कंटिन्यू कीजिए, सम कीजिए। तो ये इस सेल से, चूंकि इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं रिलेटिव एड्रेस है, इस कॉलम इस रो पर यानी रो 5 पर सी से ई तक को सम कीजिए। तो जब आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी करते हैं तो ये रो नंबर 6 होता है और रो नंबर 6 में ये कहता है सी से लेकर के ई तक की जो डेटा है यानी ये सारा डेटा उसको सम कर लीजिए। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यदि इसको हम कॉपी कर दें इसमें तो ये इस 3 का सम होगा। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिलेटिव एड्रेस, ये रिलेटिव एड्रेस का ब्यूटी है जिसकी वजह से आपको एक जगह पे फॉर्मूला एंटर किया और अब यदि इस फॉर्मूले की कॉपी हम इसको ड्रैग करके ऐसे कर दें तो सारा का ये सम शो कर देगा। कितना आसान काम है इस रिलेटिव एड्रेस की वजह से। अब एवरेज निकालना है तो आपको पता है एवरेज निकालते वक्त हम सारे नंबर्स को ऐड करते हैं और टोटल नंबर ऑफ नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट 3, यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट हमारा 3 है। इस 3 को हम यहाँ पर 3 को हम इस सेल में रख दिया। अब यदि हम यहाँ एवरेज निकालना चाहते हैं तो हम फॉर्मूला एंटर करेंगे इक्वल और इन तीनों का सम, लेकिन इन तीनों का सम यहाँ पे रखा हुआ है तो हमने इसको क्लिक कर दिया और इसको डिवाइड करते हैं 3 से, मेरा 3 यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हमने एंटर प्रेस कर दिया तो इसका एवरेज निकल गया। लेकिन यदि इस फॉर्मूले को हम कॉपी करें, इस जगह पे कॉपी करते कंट्रोल P, तो देखिए यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि सम तो ये ठीक था, इस जगह पे हमारा दोनों फार्मूला रिलेटिव है। तो F5 का मतलब हो गया 1 सेल लेफ्ट, 1 सेल लेफ्ट ऑन सेम रो, 1 सेल लेफ्ट ऑन सेम रो, ये इस फॉर्मूले का मीनिंग है। तो यहाँ पर जब आप इसको कॉपी किए, ये 1 सेल लेफ्ट ऑन सेम रो 200 इसको मिल रहा है। लेकिन जब आप इसके दूसरे फॉर्मूले को
एड्रेस को देखते हैं तो E16 लिखा हुआ है। E16 का मतलब हो गया इस सेल से 1 2 सेल लेफ्ट and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेल डाउन। इस सेल से 2 सेल लेफ्ट 11 सेल डाउन जो भी है उससे डिवाइड कीजिए। तो जब आपने इस फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी किया तो इसकी मेमोरी में कॉपी क्या हो रहा है, 2 सेल लेफ्ट 1 2 सेल लेफ्ट एंड 11 सेल डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये सेल पढ़ रहा है जिस सेल में 0 है। और आपको मालूम है कि किसी भी नंबर को यदि 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या माना जाता है, एरर माना जाता है। इसी वजह से यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो अब इस जगह पे हमें तो यहाँ भी सब्जेक्ट 3 है तो इस सम को भी 3 से ही डिवाइड करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर करना होगा कि हमें ये एड्रेस एब्सोल्यूट बनाना होगा। तो इसको यदि एब्सोल्यूट बनाना होगा तो हम क्या करें, इसको एब्सोल्यूट बनाने के लिए आप उस सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसमें फॉर्मूला है और जिसको एब्सोल्यूट बनाना है उसके राइट साइड में रखिए। देखिए E16 को हमें एब्सोल्यूट बनाना है और यहाँ लाकर हम F4 को प्रेस करेंगे। अब ये मेरा एब्सोल्यूट हो गया, इस सेल का वैल्यू तो नहीं बदला। अब इसको यदि हम कॉपी कर दें यहाँ पर तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इस दूसरे सम का भी एवरेज निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट एड्रेस के कॉम्बिनेशन से सारी फार्मूला को कॉपी कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो अब यदि इस फॉर्मूले की हम कॉपी करें कोई एरर नहीं आएगा, सारे रो का और सारे स्टूडेंट का एवरेज निकल गया। अब इसी तरह से यदि हम यहाँ पर परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहें तो परसेंटेज आपको मालूम है कि हमने 78 80 यूज़ किया है तो ऑब्वियसली इसका टोटल मार्क्स 100 में होगा। तो यहाँ 3 सब्जेक्ट है तो टोटल 100 हमारा 300 है। आउट ऑफ 300 दिस राज हैज़ गॉट 248। तो इसका हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इक्वल जो टोटल है वो उसको डिवाइड करेंगे हम। 300 को कहीं रख दें, सपोज सॉरी फॉर्मूला एंटर कर 300 को हम मान लीजिए कि यहाँ पे रख दें 300 और इस जगह पे हम यूज़ करें इक्वल और सम देन डिवाइडेड बाय दिस सेल और अब इसको मल्टीप्लाई कर दें हम स्टार और मल्टीप्लाई करा दें 100 से या 100 को भी किसी सेल में स्टोर कर सकते हैं। तो इसका ये परसेंटेज निकाल देगा। लेकिन इस जगह पे फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, बॉडमास रूल लगाते हैं। यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। मगर इस फॉर्मूले को यदि हम कॉपी नीचे वाले सेल में कर दें, यहाँ पेस्ट करें तो एरर मिलेगा। क्यों एरर मिलेगा, उसका रीज़न जो यहाँ पे 3 का है। तो हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले को चेंज करना होगा। इसमें G16 सबके लिए कॉमन है, फिक्स्ड है, तो हम G16 के राइट में रख करके इसका F4 प्रेस करते हैं। ये हमारा F4 प्रेस हो गया और इस तरीके से एंटर प्रेस करें तो इसका रिजल्ट सही होगा। और यदि इसकी अब कॉपी हम इस जगह पे कर दें तो इसका भी रिजल्ट सही होगा। अब सब दूसरी जगह पे यदि सही हो गया तो हम इस फॉर्मूले को इस जगह पर नीचे तक कॉपी कर सकते हैं। तो ये हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। अब इसकी ग्रेड निकालनी है तो ग्रेड निकालने के लिए हम फंक्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ से इस वैल्यू को जैसे ही हटाएंगे हमारा ये सारा वैल्यू रॉन्ग हो जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे सेल पर डिपेंडेंट नहीं रहें तो वैसे केस में एक और तरीका है। इस जगह पर जो हम 3 को रखे हैं किसी सेल में वो वहाँ नहीं रखकर डायरेक्ट यहाँ पे हम 3 एंटर कर दें और एंटर मार दिया। अब इसकी यदि कॉपी कर दें हम सारी जगह पे, इस पूरे प्लेस पे हम पेस्ट कर दें तो हमारा रिजल्ट सेम रहेगा। अब इस 3 को हटा भी दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस 300 को यदि आपने हटाया तो सारा एरर हो जाएगा। अब इसको यदि चेंज करना चाहते हैं तो 300 हमारा इस सेल में था, आप इस सेल को डायरेक्ट 300 कर दीजिए, एंटर मारिए, इसका रिजल्ट आया। अब इसकी कॉपी आप सब जगह कर दीजिए तो ये सारा सही होगा।
ये हमारा सही हो गया। अब इस जगह से 300 हटा चुके हैं तब भी हमारा रिजल्ट सही है। तो यदि किसी सेल पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, डायरेक्ट आप फॉर्मूला में उस वैल्यू को एंटर करते हैं। नेक्स्ट है ग्रेड। ग्रेड निकालने के लिए हम इफ का यूज करेंगे। इफ का यूज कैसे करते हैं वो हम बता दें कि यहाँ पर इक्वल if this cell contains greater than 80, then true value z, then less else value या false value l। यदि इस जगह पे हमने चेंज कर दिया 75 तो ये इसका रिजल्ट देगा l। तो इस तरह से इफ को यूज कर सकते हैं। इफ के दो पार्ट होते हैं, एक ट्रू वैल्यू और दूसरा होता है लेस वैल्यू। तो इस जगह पर जब इफ को हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ हमने पहले कंडीशन दिया और दूसरा वैल्यू हमने दिया ट्रू का वैल्यू। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो उस सेल में ये जीसो होगा और यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो उस सेल में ये एल प्रेस होगा। आप इसको ग्रेटर कर सकते हैं, इसको लेस कर सकते हैं, आप पूरा चीज़ एंटर कर सकते हैं। तो जैसा आप चाहे वैसा एंटर कर सकते हैं। तो ये सिंटेक्स है इस इफ का और इसी में हम मल्टीपल इफ को भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं वो यहाँ पर हम यूज करते हैं। इस जगह पे लिखा हुआ इफ, अब इस फॉर्मूले को हम फिर से एंटर करते हैं। डिफरेंट ग्रेड्स हमें देने हैं। एक्चुअल में इस जगह पे सारे फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं, हम इसको फिर से बनाना चाहते हैं। इक्वल इफ के बाद हमारा यहाँ परसेंटेज है। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, देन इट्स ट्रू वैल्यू। इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे हम देना चाहते हैं ए प्लस का ग्रेड, इसको देखते हैं। यदि H5 का वैल्यू 80 से बड़ा है तो ए प्लस का ग्रेड दें और देन कॉमा। इसके बाद हम यहाँ पर अगेन इफ यूज करेंगे जिसको मल्टी इफ कहते हैं और फिर से कंडीशन डालेंगे कि यदि H5 का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हो तो इस कंडीशन में इस फर्स्ट इफ के कंडीशन ट्रू होने पर ए प्लस, और यदि ये फॉल्स हो गया तो उस केस में दूसरा कंडीशन चेक कीजिए। क्या कंडीशन है कि H5 में यदि 60 है तो वैसे केस में उसको ग्रेड दीजिए ए, और यदि वो 60 से बिलो है तो वैसे केस में एक तीसरा इफ कंडीशन यूज कीजिए और फिर से चेक कीजिए कि H5 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है या नहीं। यदि ग्रेटर देन 45 बट लेस देन 60 है तो उस केस में इसका ग्रेड दीजिए बी। और यदि ये भी कंडीशन फेल हो गया तो एक फोर्थ कंडीशन लगाएंगे इफ, और अगेन यहाँ पे एक कंडीशन देंगे H5 और फिर से हम कंडीशन देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, और इस बार ये हम चेक करेंगे कि यदि ये 40 से अबव और 45 से लेस है, 40 और इससे लेस है तो उस केस में इसको ग्रेड दीजिए सी। और यदि ये भी फॉल्स हो गया तो वैसे केस में अगेन आप एक इफ यूज कीजिए और अब फिर से कंडीशन दीजिए H5 की वैल्यू यदि लेस देन 40 है, इफ H5 इज लेस देन, इसके एल्स में हम डायरेक्ट फेल्स कर देते हैं। यदि 40 से बिलो है तो
आप उस केस में इसको फेल्स का रेट दीजिए, सॉरी डबल कोट से क्लोज करना होगा। ये फर्स्ट लास्ट क्लोजिंग ब्रैकेट का, ये लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट का लास्ट क्लोजिंग हुआ। अब इसी तरह से दूसरे क्लोजिंग के लिए हमें यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट देने होंगे। उसके कलर से हम पहचान सकते हैं कि अभी हमने इस इफ का दिया है, देन इस रेड का हुआ और लास्ट में इस ब्लैक, यानी टोटल हमने डाल दिया। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे वो इसको हम डिलीट करते हैं, पुराना वैल्यू है। ये मेरा प्लस हो गया, यानी ये 80 से ऊपर है। अब इस फॉर्मूले की कॉपी यदि हम इस जगह पे पेस्ट कर दें तो सारे की ग्रेड्स आसानी से निकल जाएंगे। आप देख रहे हैं 40 से लेस है, फेल्स हो गया, सी डी एटसेट्रा। तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव एड्रेस को यूज़ करके अपने फार्मूला को यूज़ करते हैं। इस वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।